اگر ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو انسانوں سمیت پیڑ پودوں اور جانوروں کو دیکھ کر یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ جیسے بالکل اسی جگہ کے لیے ہی بنے ہیں جہاں وہ رہ رہے ہیں۔ پر یہ بھی صرف محض اتفاقی نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک دماغ، ایک سوچ موجود ہے جس نے انہیں ڈیزائن کیا ہے۔ انسان ایک غور و فکر کرنے والی مخلوق ہے، لہٰذا ایک سوال ہمیشہ اس کے دماغ میں ابھرتا رہتا ہے کہ آخر اس زمین پر زندگی کیسے وجود میں آئی، اور انسانوں کو پیدا کرنے کی اور زمین پر بسانے اور صرف اسے ہی عقل و شعور دینے کا کیا راز ہے؟ کیا انسان بھی باقی جانوروں کی طرح اپنے آباء و اجداد سے ارتقائی مراحل طے کرتا ہوا، یعنی کہ ایویلویشن کا عمل طے کرتے ہوئے بندر سے انسان بنا، یا پھر اسے انسان ہی تخلیق کیا گیا تھا؟ کیا واقعی جانوروں کی طرح آج سے لاکھوں سال پہلے کئی قسمیں یا نسلیں موجود تھی جیسے کہ جانوروں میں موجود ہوتی ہیں؟ دوستو، ان تمام سوالات کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ کسی بھی چیز کے بتدریج آگے بڑھنے کا نام ارتقاء ہے۔ انسان کا بچہ عمر کے ساتھ ساتھ بڑھتا رہتا ہے، یہ اس کا جسمانی ارتقاء ہے۔ پھر وہ تعلیم کی طرف آتا ہے، پہلی جماعت میں بیٹھتا ہے اور آہستہ آہستہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرتا ہے، یہ اس کا عملی ارتقاء ہے۔ کسی انسانی ذہن نے پہیے کی ساخت اور اس کے فوائد پر غور کیا، پھر اسے عملی شکل دی، تو آج انسان نے مہر العقول مشینیں ایجاد کر لی ہیں۔ یہ انسانی ذہنی ارتقاء ہے۔ ارتقاء کا یہ قانون صرف انسانوں میں نہیں بلکہ تمام موجودات میں بھی پایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان 2 دنوں پیریڈز میں بنائے، جس کے بعد 4 دنوں میں زمین اور اس میں بالادگی کی قوتوں کو بنایا۔ اس سے ارتقاء کا قانون واضح طور پر ثابت ہے۔ پھر یہ بات بھی ہمارے مشاہدے میں آ چکی ہے کہ ان قدرتی قوانین میں کچھ نہ کچھ مستثنیات بھی آ جاتے ہیں۔ مثلاً تمام آیات کی یہ خاصیت ہے کہ وہ جم کر یا ٹھوس شکل اختیار کر کے سکڑ جاتے ہیں، یا ان کا حجم کم ہو جاتا ہے لیکن پانی جم کر پھیل جاتا ہے۔ یہ اس تمام قانون سے مستثنی ہوا۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بالکل صحیح عقل و حواس اور ذہن رکھنے والے میاں بیوی کے ہاں پلید الذہن بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ ارتقاء کے عام قانون قدرت سے مستثنی ہوا۔ اسی طرح سنکھیا کی یہ خاصیت ہے کہ انسانوں کو ہلاک کر دیتا ہے، مگر کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ وہ کسی انسانوں کے لیے تریاق بن جاتا ہے۔ یہ مستثنائی صورت ہوئی۔ ان تمام مثالوں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ عام قوانین فطرت میں شاذ و نادر ہی صحیح، تاہم مستثنیات کا وجود بھی ممکن ہے۔ کیا انسان اولاد ارتقاء ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انسان بھی اس ارتقائی قانون فطرت کے تحت حیوانیت سے انسانیت کی منزل میں پہنچا ہے، یا اس کی تخلیق مستثنیات کے تحت بحیثیت انسان ہی ہوئی ہے؟ اس سوال کے جواب میں کئی نظریات معرض وجود میں آ چکے ہیں۔ مثلاً نمبر 1، ایک طبقہ تو مذہبی لوگوں کا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بحیثیت انسان ہی پیدا کیا ہے۔ اس تصور کے مطابق اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر اس سے اس کی بیوی پیدا کی، پھر اس جوڑے سے بنی نو انسان تمام دنیا میں پھیلی۔ عام ارتقائی قانون سے انسان کو مستثنی قرار دینے کے لیے ان کے ہاں دلیل یہ ہے کہ انسان کائنات کا ایک حصہ ہونے کے باوجود دوسرے تمام حیوانات اور دیگر اشیاء سے کئی باتوں میں الگ ہے۔ مثلاً اس میں قوت اختیار و ارادہ ہے، عقل و شعور ہے۔ پھر بادی النظر میں قرآن کے مطالعے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنا کر اس میں روح پھونکی جو دوسری کسی چیز میں نہیں پھونکی گئی، اور اسی سے اسے عقل و شعور اور اختیار و ارادہ عطا کیا گیا۔ یہ چیز اسے عام ارتقائی قانون سے مستثنی کر دیتی ہے۔ اس نظریے کی حمایت بعض مغربی مفکرین نے بھی کی ہے۔ نمبر 2، دوسرا گروہ مادتین کا ہے جو اسے خاص ارتقائی شکل کا نتیجہ قرار دیتے ہیں، کیونکہ کائنات میں بالعموم یہی قانون جاری و ساری ہے۔ ان کے نظریے کے مطابق زندگی اربوں سال پہلے ساحل سمندر سے نمودار ہوئی، پھر اس سے نباتات اور اس کی مختلف انواع ظہور پذیر ہوئیں، پھر حیوانات پیدا ہوئے۔ انہی حیوانات سے انسان غیر انسانی اور نیم انسانی حالت کے مختلف مدارج سے ترقی کرتا ہوا مرتبہ انسانیت تک پہنچا ہے۔
इस तदरीजी सफर के तवील अरसे में कोई नुक्ता नजर ऐसा नहीं हो सकता जहां से गैर इंसानी हालत के वजूद को खत्म करके नू इंसानी का आगाज तस्लीम किया जाए। बाज मुसलमान मुफक्करीन मसलन इब्न खुल्दून, इब्न मस्कुया और हाफिज मसूदी ने भी अशियाए कायनात में मुशाबिहत देखकर इस नजरिया इर्तिका की किसी हद तक तायद की है। इससे भी आगे चलिए तो तारीख के मुताले से ये मालूम होता है कि सबसे पहले अरस्तू ने यह नजरिया पेश किया था। 19वीं सदी ईस्वी में सर चार्ल्स डार्विन ने असल अल नवा यानी ओरिजिन ऑफ स्पाइसेस लिखकर इस नजरिए को बाज़ाब्ता तौर पर पेश किया। फिर इस नजरिया इर्तिका को तस्लीम करने वालों में भी काफी इख्तलाफात हुए। डार्विन ने बंदर और इंसान को एक ही नौ करार दिया क्योंकि हिस्सो इदराक के पहलू से इन दोनों में काफी मुशाबिहत पाई जाती है। गोया डार्विन के नजरिए के मुताबिक इंसान बंदर का चचेरा भाई है, क्योंकि कुछ इंतहा पसंदों ने इंसान को बंदर ही की औलाद करार दिया है। कुछ इनसे भी आगे बढ़े और कहा कि तमाम सफेद फार्म इंसान तो चिंपैंजी से पैदा हुए हैं, स्याह फार्म इंसानों का बाप गोरिल्ला है और लंबे हाथों और सुर्ख बालों वाले इंसान तिगनान बंदर की औलाद हैं। फिर कुछ और नजरिया इर्तिका का ये भी ख्याल है कि इंसान बंदर की औलाद नहीं बल्कि बंदर इंसान की औलाद है। इंसान और नजरिया इर्तिका और इस रिज्जते कहकरी की मिसालें भी कायनात में पाई जाती हैं। कुरान से भी नजरिए की किसी हद तक तायद हो जाती है, जैसे कि अल्लाह ताला फरमाता है, तर्जुमा, हमने उन बदकिरदार बनी इसराइल से कहा कि जलील बंदर बन जाओ। इस आयत की तफसील में राजे कौल यही है कि इंसान के जहन तो वही पहले ही रहे थे, मगर जिस्मानी हालत बदल दी गई और वो बंदर बन गए। नंबर 3, तख्लीकी कायनात बिलशमूलियत इंसान का एक तीसरा नजरिया नजरिया आफतगिरी है, जिसके बानी कोयर है। इस नजरिए के मुताबिक तमाम इक़साम के तांबे अलहदा अलहदा तौर पर तख्लीक हुए। ये अर्जी और समावी आफात में मुब्तला होकर नीज तो नाबूद हो गए। फिर कुछ और हैवानात तख्लीक हुए, ये भी कुछ अरसे बाद नीज तो नाबूद हो गए। इसी तरह मुख्तलिफ अदवार में नए हैवानात पैदा हुए और फना होते रहे। इस नजरिए की तायद कुरान करीम की बाज़ आयतों से हो जाती है। चूंकि डार्विन के नजरिए ने मजहबी दुनिया में एक तरह का इस्तराब पैदा कर दिया है, लिहाजा हम इसका जरा तफसील से जायजा लेना चाहते हैं। पहले इस नजरिए को जरा तफसील से पेश करेंगे, फिर इसे जेर बहस लाया जाएगा। नजरिया इर्तिका क्या है? जिंदगी की इब्तिदा साहिल समंदर पर पाया पानियों से हुई है। पानी की सतह पर काई नुमदार हुई, फिर इस काई के नीचे हरकत पैदा हुई। ये जिंदगी की इब्तिदा थी। फिर इससे नबातात की मुख्तलिफ अशकाल बनती गई। जरसूमा हैवानात में तब्दील हुआ, फिर इसने फकरी जानवर की शक्ल इख्तियार की, फिर इंसान के मुशाबा हैवान बना और इसके बाद इंसान अव्वल बना, जिसमें अक्ल व फहम और तकल्लुम की सलाहियत नहीं थी। बिलाखिर वो साहिब फहम व ज़का इंसान बन गया। इन तमाम तब्दीलात, तगय्युरात और इर्तिकाए जिंदगी में कई मुद्दतें सर्फ हुई। इसका अंदाजा कुछ इस तरह से बतलाया जाता है। आज से 2 अरब साल पेशतर समंदर के किनारे पाया पानी में गाय की नमूद शुरू हुई। ये जिंदगी का आगाज था। 60 करोड़ साल कबल यक खलवी जानवर पैदा हुए। मजीद 3 करोड़ साल के बाद स्फंज और दीगर सह खलवी जानवर पैदा हुए और इसी दौर में रीढ़ की हड्डी वाले जानवर पैदा हुए। 40 करोड़ साल कबल मछलियों और कन खजूरों की नमूद हुई। 30 करोड़ साल कबल बड़े बड़े दलदल जानवर पैदा हुए। ये अजीमुल जस्सा जानवर 84 फीट तक लंबे और 35 टन तक वजनी थे। 13 करोड़ साल बाद या आज से करोड़ साल पहले इन अजीमुल जस्सा जानवरों का खात्मा हो गया। 4 करोड़ साल कबल हाथियों, घोड़ों और बंदरों की नमूद हुई। 1/2 साल कबल बेदुम बोजने यानी ऐप पैदा हुए और 1.5 करोड़ साल बाद यानी आज से 1 करोड़ साल पहले ये बेदुम बोजना सीधा होकर चलने लगा। यही वो बंदर है जिसके मुतालिक कहा जाता है कि ये इंसान की जद्द आला है। इससे 30 लाख साल बाद या आज से 70 लाख साल पहले बेदुम बोजने की एक किस्म थपकंथरोपस से पहली इंसानी नस्ल पैदा हुई। मजीद 50 लाख साल या आज से 20 लाख साल पहले पहली बाशऊर इंसानी नस्ल पैदा हुई जिसने पत्थर का हथियार उठाया। मजीद 2 लाख साल बाद इसमें ज़हनी इर्तिका हुआ और इंसानी नस्ल ने गारों में रहना शुरू किया। डार्विन ने सबसे पहले किताब असल अल अनवा लिखी, जिसके बाद असल अल इंसान और तसलसल इंसानी लिखकर अपनी नजरिए की तायद मजीद की। डार्विन ने इस नजरिया इर्तिका को मंदरजा झेल 4 उसूलों पर इस्तवार किया है।
नंबर 1, तनाजुल बका, स्ट्रगल फॉर एक्सटेंस। इससे मुराद जिंदगी की बका के लिए कशमकश है, जिसमें सिर्फ वो जानदार बाकी रह जाते हैं जो ज्यादा मुकम्मल और ताकतवर हैं, और कमजोर जानदार खत्म हो जाते हैं। मसलन किसी जंगल में वहशी बैल एक साथ चरते हैं, फिर जो उनमें ताकतवर होता है वो घास पर कब्जा जमा लेता है और इससे मजीद ताकतवर हो जाता है, मगर कमजोर खुराक की नायाबी के बायस कमजोर तर होकर बिलाखिर खत्म हो जाता है। इसी कशमकश का नाम तनाजुल बका है। नंबर 2, इसका दूसरा उसूल तिबी इंतखाब है, जिससे इसकी मुराद ये है कि मसलन ऊपर की मिसाल में वहशी बैल दूर की मसाफत तय करते और दुश्वार रास्तों से गुजरते हैं, तो जो ताकतवर होते हैं वही ये मसाफत तय कर पाते हैं और अपने अपने आप को खतरात से महफूज कर लेते हैं। गोया फितरत खुद ताकतवर और मजबूत को बाकी रखती और कमजोर और नाकिस को खत्म कर देती है। अगरचे मंदरजा बाला 2 अलग अलग उसूल बतलाए गए हैं, मगर दोनों का नतीजा दरअसल एक ही है, जुर्म ज़ईफी की सजा मर्गे मफाजात। नंबर 2, माहौल से हम आहंगी। इस मिसाल को यूं समझिए कि शेर एक गोश्तखोर जानवर है। फितरत ने इसे शिकार के लिए नीचे और गोश्त खाने के लिए नोकीले दांत अता किए हैं। अब अगर इसे मुद्दत दराज तक गोश्त न मिले तो इसकी 2 ही सूरतें हैं, या तो वो भूख से खत्म हो जाएगा या नबातात खाने लग जाएगा। इस दूसरी सूरत में इसके तेज दांत रफ्ता रफ्ता खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे और ऐसे नए आज़ा वजूद में आने लगेंगे जो मौजूदा मशीयत के मुताबिक हों। इसकी आंतें भी तवील होकर सब्जी खोर जानवरों के मशाबा हो जाएंगी। इसी तरह अगर शेर को खुराक मिलने की वाहिद सूरत यह हो कि इसे किसी दरख्त पर चढ़कर हासिल करनी पड़े, तो ऐसे आज़ा पैदा होना शुरू हो जाएंगे जो दरख्तों पर चढ़ने में मदद देंगे। नंबर 4, कानून विरासत। इसका मतलब यह है कि उसूल की रूह से यानी मशीयत और माहौल के इख्तलाफ से जो तब्दीलियां पैदा होती हैं वो नस्लन बाद नस्ल आगे मुंतकिल हो जाती हैं। ये इख्तलाफ फरोई नहीं बल्कि नोई बन जाता है और यूं महसूस होता है कि ये 2 अलग अलग नस्लें हैं। जैसे गधा और घोड़ा एक ही नौ है, मगर गधा घोड़े से इसलिए मुख्तलिफ हो गया कि इसकी माशी सूरत हाल भी बदल गई और उसूल माश के लिए इसकी जिद्दोजहद में भी इजाफा होगा। यह है डार्विन के नजरिया इर्तिका का खुलासा, जो उस वक्त भी सिर्फ नजरिया ही था, आज भी ये नजरिया ही है। इस नजरिए को कोई ऐसी ठोस बुनियाद मुहैया नहीं हो सका जिसकी वजह से ये नजरिया साइंस का कानून बन सके। इस नजरिए पर बाद के मुफक्रीन ने शदीद एतराजात किए हैं। मसलन नंबर 1, जिंदगी की इब्तिदा कैसे होगी? मालूल तो मौजूद है लेकिन इल्लत की कड़ी नहीं मिलती। गोया इस नजरिए की बुनियाद ही साइंसी लिहाज से कमजोर है। इस नजरिए पर परवेज साहब अपनी किताब इंसान ने क्या सोचा में लिखते हैं, एक तो डार्विन ने कहा था, लेकिन खुद हमारे जमाने का माहिर इर्तिकाए जिंदगी की इब्तिदा और सिलसिला इल्लत व मालूल की अव्वलीन कड़ी के मुतालिक लिखा है कि जिंदगी की इब्तिदा क्या होगी। इंतहाई दियानतदारी से इसका जवाब यह है कि हमें इसका कुछ इल्म नहीं। इस मौमे को हल करने की कोशिश जारी है और रफ्ता रफ्ता इसके करीब पहुंचा जा रहा है, लेकिन मौमे का आखिरी नुक्ता यानी जिंदगी का नुक्ता आगाज वो है जो साइंस के इंकशाफात की दस्तरस से बाहर है और शायद इंसान के हीताए इदराक से ही बाहर। कायनात के आगाज और सिलसिला इल्लत व मालूल की अव्वलीन कड़ी का सिलसिला लाहल है और साइंस इस तक नहीं पहुंच सकती। ये अव्वलीन कड़ी राज है और मेरा ख्याल ये है कि ज़हन इंसानी इस राज तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। अगर हम चाहें तो अपने अपने तरीक पर इस इल्लत उला के हुजूर अपना सर झुका सकते हैं, लेकिन इसे अपने इदराक के दायरे में कभी नहीं ला सकते। गोया नजरिया इर्तिका के मादा परस्त कायलीन को आज तक इसके लिए कोई साइंसी और हतमी दलील मुहैया नहीं हो सकी। नंबर 2, दूसरा एतराज यह है कि इर्तिका का कोई एक वाकया भी आज तक किसी इंसान ने मुशाहिदा नहीं किया। किसी इंसान ने मुशाहिदा नहीं किया, यानी कोई चिड़िया इर्तिका करके मुर्गा बन गई हो, या गधा इर्तिका करके घोड़ा बन गया हो, या लोगों ने किसी बंदर को इंसान बनते हुए देखा हो। मसलन रेशम का कीड़ा जो अमूमन मौसम बरसात में शहतूत के पत्तों पर गुजर औकात करता है, जब 60 दिन का हो जाता है तो इसका रंग स्याह से सफेद हो जाता है। इसके मुंह से एक मादा तारों की शक्ल में निकलता है जिसे ये अपने जिस्म के इर्द गिर्द लपेटना शुरू कर देता है। ये तार साथ ही साथ खुश्क होते जाते हैं। रेशम के कीड़े के गिर्द तारों का ये जाल जब अखरोट के बराबर हो जाता है तो इसके अंदर कीड़ा मर जाता है और इसके स्याह मादे से एक सफेद तितली बन जाती है। जब ये बाहर निकलती है तो नर व मादा का मिलाप होता है।
फिर मादा अंडे देती है और दोनों नर और मादा मर जाते हैं। इस कीड़े का बिलखुसूस इसलिए जिक्र किया गया है कि इंसान ज़माने कदीम से रेशम हासिल कर रहा है और इस कीड़े की दास्तान हयात उसके सामने रहती है। इस कीड़े की दास्तान हयात में न कभी तब्दीली हुई, न ही इर्तिका का अमल कभी पेश आया। इसी तरह बास कमतर दर्जे के बहरी जानवर जो इब्तदाई जमाने में पाए जाते थे आज भी इस शक्ल में मौजूद हैं। इन पर इर्तिका का कोई अमल नहीं हुआ। हशरातुल अर्ज़ का वजूद भी नजरिया इर्तिका की तरदीद करता है, इसलिए बाज मुफक्किरीन इर्तिका के मुनकिर हैं। इसके बजाय तख्लीक खुसूसी यानी स्पेशल क्रिएशन के कायल हैं, यानी हर नौ जिंदगी की तख्लीक बिल्कुल अलग तौर पर हुई है। एक मुफक्किर डी वरेज इर्तिका के बजाय इंतकाल का कायल है, जिसे आजकल फिजाए इर्तिका का नाम दिया जाता है। नंबर 3, नजरिया इर्तिका पर तीसरा एतराज ये किया जाता है कि इसकी दोनों कड़ियां मौजूद नहीं। मसलन जोड़े वाले और बगैर जोड़े वाले जानवरों की दरमियानी कड़ी मौजूद नहीं। फिक्री और गैर फिक्री जानवरों की दरमियानी कड़ी भी मनकूद है। मछली और इनके हैवानात की दरमियानी कड़ी भी गायब है, जो खुश्की और पानी के जानवर कहलाते हैं। इसी तरह रेंगने वाले जानवर और परिंदे, रेंगने वाले जानवरों और ममालिया जानवरों की दरमियानी कड़ियां भी मफकूद हैं। फलसफा इर्तिका का ये असल दुश्वार है जो कि सालों से ज़ेरे बहस चली आ रही है। बाज नजरिया इर्तिका के कायलीन इसका जवाब ये देते हैं, दरमियानी कड़ी का जब काम मुकम्मल हो चुकता है तो वो असखुद गायब हो जाती है। इस जवाब में कितना वजन और माकूलियत है इसका आप खुद अंदाजा कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी आरा से भी आगाह कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।